آپ سارے ذرا یہ یاد رکھیے گا. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو انکل جی حکیم صاحب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے ذہنوں سے اتار دوں. یہ آپ نہ سوچا کریں کہ ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم کوئی ذاکر پہ احسان کریں گے. نہیں، ہرگز نہیں. آپ کے ہاتھ اٹھانے سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہو سکتا. اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ ہم ممبر پہ آ کے ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. ہر بندہ ممبر پہ آ ہی نہیں سکتا. ہاتھ اٹھا کے بس آپ ایک کام کرتے ہیں کہ آپ امام زمانہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں کہ مولا میں بھی آیا تھا، میرا بھی نام لکھیے گا. کرم کا طوفان بال پہ ہے، ستم کا دریا اتر رہا ہے. کسی کی صورت کھلی کھلی ہے، کسی کا چہرہ اتر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے علی بادشاہ کے نوکر علی بادشاہ کو بہت کچھ کہتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. وہ عمرے پہ جاتی ہیں، وہ حج کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتی ہیں، انکل جی اذان دیتی ہیں. وہ کرتے تو ایک عبادت ہے حکیم صاحب زوار شاہ جی، لیکن عبادت کے ساتھ ایک اور کام بھی ہوتا ہے. کون سا؟ چوتھی سطر آپ کے حوالے کر تو سمجھے نالین عباس عقیدہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں. عقیدہ عقیدے کے ساتھ ملے تو بولیے گا، نہ ملے تو میری معذرت قبول کیجئے گا. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، ستم کا دریا اتر رہا ہے. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، جس کو سمجھ آ جائے اگر وہ نہ بولا تو میں قبر تک دکھی جاؤں گا. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، ستم کا دریا اتر رہا ہے. کسی کی صورت کھلی کھلی ہے، کسی کا چہرہ اتر رہا ہے. نماز سمجھو، اذان سمجھو، طواف کعبہ کا راز سمجھو. سمجھ لو 13 رجب سے اب تک علی کا صدقہ اتر رہا. ہائے 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 جی، سلامت رہے، آباد رہے. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. بولتی ہوئی زبانوں کو اپنی امان میں رکھ. کسی کی صورت کھلی کھلی ہے، کسی کا چہرہ اتر رہا ہے. نماز سمجھو، اذان سمجھو، طواف کعبہ کا راز سمجھو. سمجھ لو 13 رجب سے اب تک علی کا صدقہ اتر رہا ہے. کوئی طبیعت لگی ہے جناب کی؟ وہ جو پچھلے سردار ہیں باخدا میں سمجھ رہا تھا تھکے میں ہوں گے، لیکن کمال آپ سن رہے ہیں. دو چار بندے میری نظر میں ہیں انکل جی، وہ بھی خیرات میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اتنے بڑے ایام خالی جھولی تو واپس نہیں جانا. یہ دعا دل میں رکھیں. جتنے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں سچے دل سے مانگیں. اگر قبول نہ ہو یہ میرا گریبان حاضر ہے. سچے دل سے مانگیں. کسی کی صورت کھلی کھلی ہے، کسی کا چہرہ اتر رہا ہے. نماز سمجھو، اذان سمجھو، طواف کعبہ کا راز سمجھو. سمجھ لو 13 رجب سے اب تک علی کا صدقہ اتر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے، نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے. موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے، نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے. پلکوں کے سائبان بھی راہوں پہ رکھ لیے. موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے. موسم 70 میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. آپ کو امیر المومنین کی عزت و عظمت کی قسم، اگر حق بنے حق نہ رکھیے گا، اگر حق نہ بنے تو میری معذرت قبول کیجئے گا. میرے بعد قبلہ نے خطاب فرمانا ہے، یہ آپ کو تفصیلاً سنائیں گے. میں نے بات کی ہے موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے. مولا علی بادشاہ میں آپ کا اتنا چھوٹا سا ذاکر ہوں کہ لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بڑا ہے. مجھے اتنی ہمت عطا کریں، انہیں بات سمجھا لوں. انہیں اتنی ہمت عطا کریں یہ سن کے سمجھ کے مجھے اس کی قیمت دے دے. موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے، نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے. پلکوں کے سائبان بھی راہوں پہ رکھ لیے. موسیٰ نے اپنے ہاتھ، یا علی آپ کا شیعہ نہ چپ رہ جائے، موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے. بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ، اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے دور پہ. ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے حیدر 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 جیے یا علی. بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ. جیے اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے طور پہ. اگر اجازت دے تو 4 سطریں اور پڑھوں.
इजाजत दे तो थक तो नहीं गए। इसको तो मैंने पहले भी देखा है तूर पे। मैं कह रहा हूं निगाह नूर ने वहदत का नूर देखा है, खुदा के घर में भी मूसा ने तूर देखा है। आए हाय हाय, खुदा के घर में भी मूसा ने तूर। अब अगर मैं एक छोटी सी बात करूं हकीम अंकल जी, कि मैं आप में से किसी के प्यार में अंकल जी चूर हूं, चूर तो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना अंकल जी। ये आपके सामने खड़ा हूं, ठीक ठाक खड़ा हूं। ये जिनके हाथ बंधे हुए हैं एक दफा हाथ खोल दे। पता है क्या, माजरत के साथ जब बंदा सरकार का लंगर करता है तब भी हाथ खोलने पड़ते हैं। इमाम की बारगाह में एक बंदा आया कि कहने लगा सरकार ये जुबान क्या है। सरकार फरमाती है जुबान दो किस्म की है। कौन कौन सी? एक जुबान है जो तुम रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हो, एक जुबान है जो तुम हमारे जिक्र में इस्तेमाल करते हो। सरकार उसमें से अच्छी जुबान कौन सी है? सरकार फरमाती है वो जुबान जो हमारे जिक्र में बोले। सरकार फरमाती है तुम हमारे जिक्र में बोलोगे तब ही कल तुम्हारी कब्र में मेरे दादा आके तुम्हारे जगह जवाब देंगे। तो फिर कुछ रिटर्न तो करना पड़ेगा ना उनको, जब वो इतना कुछ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जरा सर उठा के मेरी बात की, निगाह नूर ने वहदत का नूर देखा है। ये बात इसलिए शुरू की है कि मुझे आप पे यकीन है, मुझे पता है बात मुश्किल है, लेकिन आप कदर कीमत करते हैं, आप जानने वाले लोग हैं, आप देंगे। मैं कह रहा हूं निगाह नूर ने वहदत का नूर देखा है। निगाह नूर ने या अली बादशाह, वो बंदा मेरी मजलिस में आपका शिया ना हो जो सुन के समझ के चुप रह गए। निगाह नूर ने वहदत का नूर देखा है, निगाह नूर ने वहदत का नूर देखा है। या तो बंदा कुरान पे हाथ रख के बैठे कि आज बोलना ही नहीं छोटे जाकिर के साथ, या गरीब को मजलिस में बोलना ही नहीं आता। निगाह नूर ने वहदत का नूर देखा है। खुदा के घर में भी मूसा ने तूर देखा है। रजब की 13वीं शब थी, अली की अम्मा ने अली के इश्क में काबे को चूर देखा है। हाय 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 जी, सलामत रहे आबाद रहे। अल्लाह उठे हुए हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे, बोलती हुई जबानों को अपनी अमीन। नमाज का वक्त भी होने वाला है तो मैं बात मुख्तसर करूं। सब जानते हैं, सीनियर लोग बैठे हुए हैं। एक बादशाह गुजरा है अंकल जी, बड़ा मशहूर बादशाह सिराजुद्दौला। सबको पता है सिराजुद्दौला। ये तो पहले दिन से शिया था। इसका एक भाई था आसिफुद्दौला, वो शिया नहीं था, उसे किसी बात ने शिया किया था, उसे किसी बात ने शिया किया था। कौन सी बात? किबला बैठे हैं, तायद करेंगे अंकल जी। उसके महल के बाहर दो फकीर बैठते थे। मैं दोनों की सदाएं आपको बताता हूं, जिसकी सदा अच्छी लगे उस पे बोल लीजिएगा। वो रोज गुरे तो एक बोले दे आसिफुद्दौला, दूसरा कहे जिसे दे मौला उसे क्या दे आसिफुद्दौला। आए हाय हाय, जिसे दे मौला। मैंने क्या, मैंने मुख्तसर बात करनी है। जिसे दे मौला उसे क्या दे आसिफुद्दौला। उसको ना बड़ा गुस्सा है, भाई इसको मैं रोज देता हूं, ये क्या कह रहा है मौला 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 इसने लगाई हुई है। 3-4 दिन गुजरा, इसने कोई तवज्जो नहीं दी। या आखिर आपको पता है बात निकलते निकलते निकल जाती है। वो एक दिन ना बल्कि हर रोज इसके महल के बाहर हजूम लग जाए। एक बोले दे आसिफुद्दौला, दूसरा बोले जिसे दे मौला उसे क्या दे आसिफुद्दौला। अब गुस्सा तो इसको भी बड़ा चढ़े, भाई एक खुशामद कर रहा है दे आसिफुद्दौला, दूसरा शान में कमी कर रहा है जिसे दे मौला उसे क्या दे आसिफुद्दौला।
वजीर इसके पास आया, कहता है बादशाह अजीब तमाशा लगा हुआ है, मैं बात मुकम्मल करके आपको सलाम करूं। अजीब तमाशा लगा हुआ है, हजूम लग जाता है रोज। दे आसिफुद्दौला, जिसे दे मौला उसे क्या दे आसिफुद्दौला। बादशाह क्या करें? आसिफुद्दौला कहता है जाओ बाजार से 2 तरबूज लाओ, मैं देखता हूं इसे मैं देता हूं या इसका मौला देता है। सारे 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 भाई मौला को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। दरूद मिल के आले मोहम्मद की जात पे तिलावत फरमा। भाई वासिफ माशाल्लाह अच्छा पढ़ते हैं, मालिक जुबान में मजीद तासीर अता फरमाए। कुछ तवज्जो है जनाब की? अंकल जी 2 तरबूज ले आओ, देखते हैं इसे मैं देता हूँ या इसका मौला देता है। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, वो आपको तफसीलन सुनाएंगे, मैंने थोड़ी सी बात करनी है। इसे मैं देता हूँ अंकल जी, इसका मौला देता है। तरबूज लाए गए, एक को इसने काटा, अंदर से खाली किया, उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात को भर के बंद कर दिया। कहता है ये उसे दो जो कहता है दे आसिफुद्दौला, खाली तरबूज अली के नौकर को दो जो कहता है जिसे दे मौला। जी है, पिछले सरदार अली आपका भी इमाम है, हैदरी अली। खाली तरबूज उसे दो जो कहता है जिसे दे मौला। बड़ा लुत्फ वाला वाकई है, उसे क्या दे आसिफुद्दौला। तरबूज लाए गए, जार वाला तरबूज उसको दिया जो खुशामद करता था, खाली तरबूज अली के नौकर को दिया। आजमाने की कोशिश कर रहे हो यार, तुम लोग पागल हो। इसको बात ने शिया किया था, मैं बात आपके हवाले करूं। जब उसने उठाया ना तरबूज, उसको नहीं पता इसके अंदर सोने चांदी हीरे जवाहरात हैं। और हमारे पास आ जाए, हम खोले तो हमें मिले, तो हम तो किसी के नहीं देंगे, नहीं देंगे ना। वो जाहिल, उसको पता ही नहीं चला, उसने उठाया अली के नौकर के पास आ गया। वो कहता है देख तरबूज ना मैं खाता हूं ना मेरे बीवी बच्चे खाते हैं। सारे 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 ना मैं खाता हूं ना मेरे बीवी बच्चे खाते हैं। उसको हकीम साहब नहीं पता भाई इतनी दौलत है इसके अंदर, नहीं पता। कहता तू मुझसे खरीद ले। कहता है अच्छा। अली के नौकर ने जेब में हाथ डाला, 2 दिनार निकाले, उसको दे दिया। कहता है मैं भी खाता हूँ, मेरे बीवी बच्चे भी खाते हैं। अली बादशाह का नौकर तरबूज लेके, यार वो बंदा मजलिस से मेरा कत्ल करके जाएगा, जो सुन के समझ के चुप रह गया। समझना है आपका भी अपना मुकद्दर, मेरा भी अपना मुकद्दर, कम से कम हाथ उठाना, मेरी जरा हौसला अफजाई हो जाएगी। मैं यकीन से घर जाऊंगा कि मैंने बात निभा ली और आपको समझा ली। अली बादशाह का नौकर अपने घर, वो अपने घर, तरबूज काटा, एक खाली, एक में सोने चांदी हीरे जवाहरात। वो तो सब कुछ बेच के सो गया, अली का नौकर सो गया। अगले दिन वो फिर आ गया, कहता है दे आसिफुद्दौला। वजीर कहता है ये कितना कमजर्फ है, कितना लालची है, कल इसको सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरा हुआ तरबूज दिया, आज फिर मांगने आ गया। बादशाह कहते हैं इसे दरबार में बुलाओ। आसिफुद्दौला के पास आया, कहते जी सरकार। आसिफुद्दौला कहते गर्दन नीचे कर। तलवार नयाम से निकाली, कहता मैं तेरी गर्दन कलम करूंगा। वो कहता क्यों? कहता है कल मैंने तुझे सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरा हुआ तरबूज दिया, आज फिर मांगने आ गया। वो कहता है सरकार अगर मुझे पता होता उसमें इतनी दौलत है, मैं कभी भी अली के नौकर को 2 दिनार में न बेचता। आसिफुद्दौला ने कान पकड़े, जमीन पे गिरा, कहता मेरा अल्लाह वो सच कह रहा था, जिसे दे मौला उसे क्या दे आसिफुद्दौला। हाय 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 जी, ये सलामत रहे, आबाद रहे। अल्लाह उठे हुए हाथों को किसी कमीने का मौत ना दे, बोलती हुई ज़बानों को अपनी अमान में रखे। थके तो नहीं जनाब? 1-2 बातें और मैं आपको सलाम करूं। जिसे दे मौला उसे क्या दे आसिफ। याली तेरे क्या कहने कि अली फरमाती हैं मैंने जैसा चाहा अपने अल्लाह को वैसा ही पाया, और मेरे अल्लाह मुझे वैसा कर दे जैसा तू चाहता है। हमें मजबूर ना करो कि हम बताने शुरू हो जाएं अल्लाह अली को कैसा चाहता है, मजबूर ना कीजिए। और जितनी फजीलत हम बयान कर रहे हैं उतनी काफी है। तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही, हमने थोड़ी सी और खोल दी, तुम तो मर जाओगे। मेरा अल्लाह मुझे वैसा कर दे जैसे तू चाहता है। मस्जिद कूफा के मिंबर पे
आपके और मैं मौला तशरीफ फरमा। यार बात बड़ी लुत्फ वाली है, तवज्जो हुई, आप बोल पड़े तो मुझे भी लुत्फ आ जाएगा। मिंबर पे तशरीफ फरमा। अली फरमाती है मेरा अल्लाह मुझे वैसा कर दे जैसा तू चाहता है। और लोगों मैंने अपनी अल्लाह को वैसा पाया जैसा मैंने चाहा था। आपको पता है हर महफिल में एक मुनाफिक जरूर होता है, एक गंदा कीड़ा जरूर होता है। अली ने बात की या सेंटर में से एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, कहता है या अली अजीब बात करते हैं, आप तो ऐसे कह रहे हैं जिस तरह आपने अल्लाह देखा हुआ है। अली फरमाती है चुप करके या बैठ जाओ या निकल जाओ। अली उसे सजदा करता ही नहीं जिसे अली ने देखा ना हो। हाय 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 हाय, सारे सारे जहमत पे अंकल जी आपकी तमाम करूं, बस थोड़ी सी बात मैं खत्म करूं। अली उसे सजदा करता ही नहीं जिसे अल्लाह ने देखा ना हो। यार तुम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हो कि जिनके घर की कनीजें भी मलका हैं। तुम्हारे मेरे घर की कनीजें वो होती हैं जो बेचारी मजबूर होती हैं, जिनके पास घर खाने को नहीं होता, काम करना पड़ता है। उनकी तो कनीजें भी वो हैं जो मलका हैं। जनाब फिजा हबश की मलका, कनीज उनके लिए है, हमारे लिए तो सर का ताज है। बिल्कुल कीमिया घर, फिजा का मतलब भी चांदी, चांदी बनाना जानते। एक दिन देखा हसनैन फाके में मस्जिद चले गए, बड़ी परेशान बड़ी दुखी हुई। हसनैन मेरे होते हुए फाके में चले गए। चांदी से 2 नन्ही मुन्नी मछलियां बनाई, हाथों पे उठाई, कहती है अली बादशाह को जाके दूंगी, वो बाजार में फरोख्त करके हसनैन के लिए कुछ खाने पीने के लिए अंकल जी लाएंगे। अंकल जी मछलियां उठाई, अली बादशाह की खिदमत में कदमों में। या अली मैंने देखा हसनैन फाके में मस्जिद चले गए। या अली मुझे बड़ा दुख हुआ, ये मैंने चांदी से 2 नन्ही मछलियां बनाई हैं। जवार शाह जी जाए अंकल जी, या अली इसे बाजार में फरोख्त करके हसनैन के लिए कुछ खाने पीने का सामान लाए। लफ्ज फरोख्त आया, मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, यार बात का लुत्फ लीजिएगा। अली बादशाह ने जनाब फिजा के हाथ पे रखा, चेहरे पे जलाल आया। फिजा फरमाती है या अली हाथ पे सर पे हाथ रख लिया। या अली मुझे लगता है आपको जलाल आ गया। या अली गुस्सा आ गया। या अली क्यों? अली फरमाते हैं फिजा तुम मेरी शान में मेरी शान की तौहीन कर रही हो, तुम मेरी शान में कमी कर रही हो। तुम कहती हो फरोख्त करो, मुझे बताओ मैं इन मछलियों को पानी के बगैर तैरना सिखाऊं, पानी के बगैर तैरना सिखाऊं? अली ने हुक्म नहीं दिया, मछलियों ने फिजा के हाथ पे तैरना शुरू कर दिया। मैं मोमिन की फजीलत बताने लगूं, मोमिन ना बोले तो दुख लगेगा। मछलियों ने जनाब फिजा के हाथ पे तैरना शुरू कर दिया। फिजा फरमाती है या अली अजीब बात है, आपने हुक्म तो नहीं दिया, आपने तो सिर्फ बोला मछलियां तैर क्यों रही हैं? अभी अली क्या बोलते मुझे नहीं पता, या मछलियों ने लब खोले। कहती है फिजा अजीब बात करती हो, हम मछलियां मोमिन के कहने पे पानी के बगैर तैर सकती है, ये तो अमीर अल मोमिनीन है। या अली आज की आखिरी बात, ये तो अमीर अल मोमिनीन है। अली के नौकरों की इतनी फजीलत है, हाय हाय इतनी फजीलत। आखिरी बात, 2 जुमले मुसीबत के राजी रहिएगा, जितना मेरा हक था मैंने पढ़ लिया। मेरे बाद 2 बेहतरीन जाकिर, इलामा साहब भी और भाईवा साहब भी, मालिक बख्त मजीद बुलंद फरमाए। तवज्जो है जनाब की, थके तो नहीं? अली बादशाह की खिदमत में एक बंदा आया, कहता या अली ये मौत क्या है? अली फरमाती है एक बात बताऊं या 2 बातें? कहता 2 बातें बता दी। अली फरमाती है मौत हम आले मोहम्मद के नजदीक ऐसे है जैसे तुम्हारे बच्चों के लिए खिलौने, तुम्हारे बच्चों के लिए खिलौने। या अली दूसरी बात, अली फरमाती हैं याद रखना मौत वसीला है मुलाकात अली का।
मुलाकात अली का। यानी अली बादशाह का मैं आपको एक फरमान सुनाऊं, ये याद रखिएगा सारी जिंदगी। अली फरमाती है मेरा चाहने वाला तब तक नहीं मर सकता जब तक उसका दिल ना करे। ये बार बार उठिए ना जरा, महफिल का माहौल खराब हो जाता है। जब तक उसका दिल ना चाहे वो तब तक नहीं मर सकता। इतनी फजीलत, मुझे मिंबर की इज्जत की कसम। अजान हो जाए मैं फिर बात करूं। अच्छा, हमारा चाहने वाला तब तक नहीं मर सकता जब तक उसका दिल ना करे। बहलोल अली बादशाह का नौकर, काम क्या है, पानी की बोतल हाथ में बगदाद की गलियों में फिरता है, मिट्टी की ढेरिया बना के जन्नतें बेचता है। प्रॉपर्टी डीलर बैठे होंगे मजलिस में। प्रॉपर्टी डीलर्स का कोई एक ठिकाना होता है ना, ठिकाना होता है। बहलोल का कोई एक दफ्तर नहीं, जहां आलम का साया नजर आता है बैठ जाता है, जहां आलम का साया नजर आता है बैठ जाता है। मिट्टी की ढेरिया बना के जन्नतें बेच रहा है। बस आखिरी बात, दो जुमले मुसीबत के मैं आपको सलाम करूं। जन्नतें बेच रहा है। शाम को 5 बजे जो पैसे इकट्ठे होते हैं बच्चों को बुलाता है, पैसे दे के कहते हैं जाओ गली गली में जाके कहो अली हक है। हाय 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 हाय, मैं बात कर गया आपने समझी नहीं। जाके कहो अली हक है। यार वो कैसा माहौल बनता होगा जब बच्चे मुनाफिक के दरवाजे पे दस्तक देते होंगे। मुनाफिक बाहर आके कहता होगा क्या है, बच्चे कहते होंगे अली हक है, अली हक है। किसी मुनाफिक से टकरा हो गया, वो कहते तुम ऐसा करो 2-2 दिनार लो, जाके कहो अली हक नहीं है, मेरा पीर हक है। मैं ज्यादा बात खोल नहीं सकता, फिर अगले दिन हथकड़ियां लग जाती हैं। मेरा पीर हक है, फुला हक है। वो बच्चों ने थे तो बच्चे ना, लालच देंगे, बच्चों ने दिनार ले लिए, दस्तक दे रहे हैं, यहां तक उसका नाम, यहां से अली हक है। यहां तक उसका नाम, हकीम साहब बड़ा लुत्फ ले रहे हैं, यहां से अली हक है। पहले के दरवाजे पे, दूसरे के, तीसरे पे, यहां तक फुला अली हक है, फुला अली हक है। वो तो बड़े परेशान हो गए, भाई क्या मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, 1000 मजाल आप उठ के अगले साल तक दाद दे, आपकी दाद थोड़ी। मेरा आखिरी जुमला ये ज्यादा वजनी होगा, बस संभाल लीजिएगा, एजाज की बात होगी। फुला अली हक है, सारे ग्रुप बनाया, इकट्ठे हुए, कहते हैं क्या बात है, नाम हम उसका लेते हैं, जुबान से निकलता है अली हक है, अली हक है, अली हक है। उनमें कोई जनाबे कासिम जैसा लीडर भी था। पिछले सरदार आप भी तगड़े होकर बैठे, अब आपने भी हाथ उठाने की जहमत करनी है। उनमें जनाबे कासिम जैसा कोई लीडर था, वो कहता है एक हाल है मेरे पास। कौन सा हाल? वो चलते चलते आए उस बंदे के पास, बच्चों ने 2-2 दिनार उसके मुंह पे मारे। कहता है हमसे तेरा काम नहीं हो सकता। वो कहता है क्यों? कहता है अली के नाम का खा इतना चुके हैं, हमसे नमक हरामी नहीं होती। हाय 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 हाय, जिए सलामत रहे। अली के नाम का खा इतना चुके हैं, हमसे नमक हरामी नहीं। आज चूंकि शाम हो गई है, आप उस इमाम को पुरसा देने आए हैं जिस इमाम ने 14 साल रकू में गुजारे। मैंने कह दिया, आपने बेदहानी कर दी। जो जवान बैठे हुए हैं घर जाइएगा, हकीम साहब क्या करते, जिंदान ही इतना तंग मिला था। ऊपर भी सीखे, दाएं बाएं भी सीखे। मैंने ना जुमला पढ़ा, आप सबने बड़ी बेदहानी कर दी, आपकी हाय भी नहीं आई। जो जवान बैठे हुए, आप जितने भी बैठे हुए हैं घर जाइएगा, एक अमल कीजिएगा, मसाइब में ना उठिएगा, जरा मसाइब की बेहुरमती होती है। 5 मिनट ना रकू में खड़े होइएगा, 5 मिनट गुजर जाए ना, फिर बगदाद की तरफ मुंह करके कहिएगा मौला तुझ पे कुर्बान जाऊं, हमसे 5 मिनट नहीं खड़े होने होता, तू 14 साल रकू में खड़ा रहा। मौला हम 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते।
आपने इनके आप तक आवाज नहीं आई, आपने समझा नहीं। कहती हैं दो हस्तियां ऐसी हैं, दो शहादतें ऐसी हैं जो नहीं भूल सकते। कौन सी? पहली गाजी की, मौला के पास तड़पने के लिए जिस्म नहीं था। दूसरी मूसा काजिम की, मौला के पास तड़पने के लिए जगह नहीं थी। मैंने इमाम का तो मसाइब नहीं पढ़ना, आखिरी जाकिर का हक है वो पढ़ेंगे। मैंने उनके बेटे जनाब कासिम की दो जुमले आप तक पहुंचाने, जितना मैं पढ़ूं एक हाय आपकी मेरे कान तक आ जाए। अज़ादाराने मजलूम करबला जनाब कासिम इतना शरीफ सैयद, इतना गैरतमंद सैयद, बाजार में जाते थे, हजूम ज्यादा होता था, नजरें झुका लेते थे। नजर उठा के या अली बादशाह, वो शिया ना हो जो सुन भी ले समझ भी ले फिर भी हाय तक न कर सके, नजरें उठा के नहीं देखते थे। अंकल जी फिर जब चलना मुश्किल हो जाता था ना, कुर्बान जाऊं, आसमान की तरफ मुंह करके कहते थे वाह दादी जैनब। रो के कहते थे जिस बाजार में मर्द के लिए चलना मुश्किल होता है, अल्लाह जाने 18 भाइयों की बहन कैसे चली, अल्लाह जाने 18 भाइयों की बहन कैसे चली होगी। बासदारो जिसके घर में रहते थे या अली, उसकी एक बेटी भी थी आसमा। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, वक्त गुजर गया, आसमा बड़ी हो गई, घर वालों ने कहा रिश्ता ढूंढो। तो जिसके घर में रहते थे रो के कहते हैं ये जो हमारे घर में रहता है तो ये भी जवान, जो हमारे घर में रहता है तो ये भी जवान। वो कहती है नहीं, ना घर का पता, ना वतन, ना बहन, ना भाई, ना हसब, ना नसब। रो के कहते हैं ऊंचा ना बोल, मेरे घर में चलता है मुझे ऐसा लगता है मेरा 7वां इमाम मूसा काज़िम है।
तवज्जो रखें, बस 2 जुमले। अबू बशीर कहते हैं ऊंचा ना बोल, मेरे घर में चलता है, मुझे लगता है मेरा 7वां इमाम मूसा काज़िम। बस अज़ादारो, हो गई शादी, हो गया रिश्ता तय। शादी वाली रात थी, एक हाय आ जाए और मैं मिंबर किबला को दूं। अज़ादाराने मजलूम करबला, शादी वाली रात, आसमा की एक दोस्त सहेली शहजादे के पास आई, सेहरा उठाया के देखा, आंखें नहीं है, सावन के बादल है। आसमा के पास आई, कहती है अजीब शोहर है, हर शोहर शादी वाली रात खुश होता है, तेरा शोहर रो रहा है। आसमा आई अबू बशीर के पास, रो के कहती है बाबा, बाबा मेरे शोहर से कहे रोए ना, अगर वतन पे कोई बहन है बुला ले, हम शादी आगे करते हैं। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम। अबू बशीर शहजादे के पास आए, रो के कहती है कासिम, मेरी बेटी कहती है रो ना, हम शादी की तारीख आगे करते हैं, अगर वतन पे कोई बहन है बुला ले। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, मुंह पे मातम करके कहती है अबू बशीर मेरी कोई एक बहन है, मैं 18 बहनों का भाई हूं। अज़ादाराने मजलूम करबला, हो गई शादी, अल्लाह ने बेटी अता की, नाम रखा फातिमा। 3 साल की हो गई फातिमा। बाबा के साथ इस तरह प्यार है जैसे इमाम हुसैन का बीबी सकीना के साथ प्यार था। जब तक बाबा घर नहीं आएगा खाना नहीं खाना, सोना नहीं है, सीने पे सोना है। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, 3 साल की हो गई फातिमा। मुहर्रम का चांद चढ़ा, आ गया मुहर्रम, क्या देखा यकम मुहर्रम, हालत बाबा की बिगड़ गई। सर के बाल खुले हुए हैं, गिरबान चाके, आस्तीनों के बटन खुले हुए हैं, पाँव में नालैन कोई नहीं। अज़ादाराने मजलूम करबला करीब आई, रो के कहती है बाबा, बाबा हालत क्यों बना ली ऐसी। मुझे मिंबर की कसम शहजादे ने उठाया, सीने से लगाया, रो के कहती है फातिमा मेरा बेटा हो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बादशाह था, बड़ा प्यारा बस रहा था, नाने की उम्मत को उसका बसना पसंद नहीं आया। फातिमा एक है आपकी मेरे तक आ जाए और मैं मिंबर भाई के हवाले करूँ। फातिमा वो अपने घर वाले लेके जंगलों में आ गया। 2 मुहर्रम वो करबला पहुंचा, बेटा उसको फौजियों ने लूट लिया, बेटा फौजियों ने उसको लूट लिया, बेटा फौजियों ने उसके बेटे मार दिए, भाई मार दिए, दूध पीते बच्चे मार दिए। रो के कहती है बेटा रात गुजर गई, सुबह आई, बाबा नमाज पढ़ा था, बेटी पास खड़ी थी, या कत्ल हो गया। छोटे छोटे हाथ बाबे के मुंह पे रख के कहती है इंसाफ से बताना उस बादशाह का नाम हुसैन तो नहीं, इंसाफ से बताना उस बादशाह का नाम हुसैन तो नहीं। हाँ बेटा हुसैन है। क्या देखती है हकीम साहब, 7 मुहर्रम सबील पे नहीं गए। बाबा क्यों? बेटा पानी बंद हो गया, पानी बंद हो गया। 8 मुहर्रम हालत खराब। 9 मुहर्रम बाबा पानी नहीं पीता, कभी दाएं से बाबा पानी पी ले, कभी बाएं से नहीं पीता। 10 मुहर्रम करीब आई, रो के कहती है बाबा हालत क्यों ऐसी बना ली है, बाबा बता तो सही, बाबा पानी क्यों नहीं पीता, बाबा आपके सर में खाक है, बाबा क्यों ऐसी हालत बना रही है। बेटी को उठाया, लेके आ गए हिल्ले से बाहर। हिल्ला वो जगह है जहाँ का अबू बशीर था, रहने वाला था, जहाँ रहते थे। 5 मील का फासला बनता है करबला में और हिल्ला में। एक ऊंचे से टीले पे खड़ा किया जहाँ से रोजा नजर आता था। जवार शाह जी रो के कहती है मेरा बेटा जो कुछ मैं कहूँगा मानोगी? बाबा मानूंगी। वो शिया नहीं हो सकता जिसकी आय तक भी मेरे कान तक ना आए, मानूंगी। रो के कहती हैं सबसे पहला काम अपने दुर उतार। बेटी अपने दुर उतार। दुर उतारे कहते हैं मेरे करीब आ। करीब आई, बाल खोले, खाक उठाई, बालों में डाली। रो के कहते हैं अब वो जो सुनहरी रोजा है ना उसकी तरफ मुंह करके कहा सकीना तेरी सुन्नत अदा है। उसकी तरफ मुंह किया। रो के कहती हैं सकीना तेरे अकबर के बड़े अरमान। बाबे के पास आई। वो बंदा एक दफा इमाम मूसा काजिम से माफी जरूर मांगेगा,
جو ہائے تک نہ کر سکا. بابا جو بات آپ نے کہی میں نے مانی. بابا آپ نے کہا دور اتار میں نے اتارے. بابا آپ نے کہا حالت یتیموں والی بنا میں نے بنائی. بابا آپ نے کہا سنہری روزے کی طرف منہ کر کے کہے سکینہ تیری سنت ادا ہے. بابا میں نے کہہ دیا. بابا انصاف سے بتا سکینہ میری کیا لگتی ہے؟ رو کے کہتی ہے وہ امیر کی بیٹی ہے تو غلام کی بیٹی ہے. رو کے کہتی ہے بابا کوئی تیسری رات ہے, کوئی زخمی کانوں والی بچی ہے, میرے سر کی طرف آ کے کھڑی ہوتی ہے. رو کے کہتی ہے جاگ یتیمی کے موسم آ گئے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.